न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। BN घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, BN घाटी, मेन शॉपिंग। एसआई प्रक्रिया को लेकर बीएलओ का प्रदर्शन, नए कार्यभार से परेशान, कार्य की समय सीमा बढ़ाने की रखी मांग। এত চাপ দেওয়া হয়েছে বলার বাইরে, আমাদের চান খাওয়া ঘুম আমাদের সব বন্ধ হয়ে গেছে। एसआईआर को लेकर भाजपा की बैठक, एक भी फर्जी मतदाता ना जुड़े और एक भी जायज मतदाता बाद न जाने का लिया संकल्प। पार्वती टीचर्स इंस्टीट्यूट में शिक्षा को व्यापक बनाने के लिए एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन, विभिन्न प्रोफेसर शिक्षकों ने रखी अपनी राय। रानीगंज के कई बस स्टैंड का खास्ता हाल, रख रखाव नहीं होने के कारण जनता परेशान। আর এত অল্প টাইমের মধ্যে এই কাজ করাটা আমাদের পক্ষে খুব অসম্ভব ছিল। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया के प्रथम चरण का काम पूरा होने के बावजूद चुनाव आयोग द्वारा लगातार नए निर्देश और ऐप आधारित काम दिए जाने से बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ परेशान हैं। शुक्रवार सुबह सलानपुर ब्लॉक के लगभग 143 बीएलओ ने सामूहिक रूप से खंड विकास अधिकारी बीडीओ कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि एसआईआर के फॉर्म वितरण, संग्रह और अपलोडिंग का काम पूरा होने के बाद अब उन्हें त्रुटिपूर्ण फार्मों का पुनः सत्यापन करने और दोबारा जानकारी जमा करने को कहा जा रहा है। बीएलओ ने कहा कि वे पहले ही काफी मेहनत कर चुके हैं और अंतिम समय में अतिरिक्त काम सौंपना उनके लिए संभव नहीं है। আমরা জানি যে ফর্ম সাবমিট করে দিলাম মানে আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেল, কিন্তু প্রতিদিন অ্যাপটা আপডেট হচ্ছে আর নতুন নতুন করে অপশন দিচ্ছে, যে অপশনগুলো আমাদের কোনো ধারণাই নেই। এখন কালকে আপডেট করার পর দেখছি যে প্রায় 200 আমার কাছে ফর্ম এসছে, সেগুলো রিভেরিফাই করতে হবে এবং সেগুলো ডকুমেন্টস কালেক্ট করে আবার সেগুলো সাবমিট করতে হবে এবং সেটা টাইম শিডিউল হচ্ছে আগামীকাল নাকি রাত 11টার মধ্যে কমপ্লিট করতে হবে, যেটা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। এই 200টা ইলেক্টরের কাছে গিয়ে তাদের ডকুমেন্টস কালেক্ট করে আবার নতুন করে সাবমিট করা, এটা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। পাচ্ছি না, ওইভাবেই আমরা করেছি। এত চাপ দেওয়া হয়েছে বলার বাইরে, আমাদের চান খাওয়া ঘুম আমাদের সব বন্ধ হয়ে গেছিল। এইভাবে আমরা ঘুমোতে ঘুমোতে কাজ করেছি। আমাদের এত প্রবলেম করেছে, আমাদের ছেলেদের শরীর খারাপ, জন্ডিস হয়েছে, তাও আমার ছেলেটাকে আমি দেখতে পারিনি। এই কাজের দিকে আমি মন দিয়ে রেখেছি। তারপরেও কাজ জমা দেওয়ার পরেও আবার রোল কতগুলো আবার নতুন করে এখন আবার ওগুলো এসছে। বলুন তো অ্যাপে এইরকম আপডেট আসছে যে আবার ওগুলোকে ভেরিফাই করতে হবে। বলুন তো আমাদের উপরে এইরকম প্রেশার দেওয়া ঠিক হচ্ছে না, আমরা মানসিকভাবে অত্যাচার হচ্ছি। দেখুন, আমাদের তরফ থেকে বিএলওদের সবসময় সাপোর্ট আছে। আপনারা জানবেন যে বিএলওরা যখন যে কোনো অসুবিধায় পড়েছে, আমাদের অফিস কিন্তু সবসময় অফিসের এইআরও হোক বা যিনি ওসি ইলেকশন আছে বা আমি সবাইকে হেল্প করেছি। কোনো অ্যাপের যদি কোনো সেটিং বুঝতে অসুবিধা হয়েছে আমরা সেটা বুঝিয়ে দিয়েছি। কারণ আমাদের তরফ থেকে বিএলওদের প্রতি সবসময় সাহায্যের হাত আমরা বাড়িয়েই আছি। কোনো রকম অসুবিধা হলে আমরা আমাদের সাহায্য করব। এখন কি তাদেরকে কাজ করতে হবে? তারা যে দাবি রেখেছে না তাদের অন্য ব্যবস্থা? আমি আমাদের ব্লকে বলতে পারি, আমাদের ব্লকের প্রতিটি বিএলও খুব ভালো কাজ করেছেন এবং ওনারা আমাদের সাথে দারুণভাবে সহযোগিতা করেছেন। সেজন্য আমরা টাইমলি কাজটা খুব ভালোভাবে কমপ্লিট করতে পেরেছি এবং কিছু কিছু বিএলও আপনারা সবাই দেখেছেন যে অনেক আগেই কাজটা কমপ্লিট করে দিয়েছিল। इसी तरह के मांगों को लेकर बाराबनी ब्लॉक के बीएलओ ने भी बीडीओ को एक प्रतिवेदन सौंपा। बीएलओ ने मांग की है कि उन्हें इतने बड़े काम के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। उन्हें चेतावनी दी कि यदि इतने कम समय में भारी मात्रा में काम दिया जाता है तो गलतियां होने की संभावना है और इसके लिए बीएलओ किसी भी तरह से जवाबदेही नहीं होंगे। दोनों ब्लॉकों के बीडीओ ने बीएलओ को आश्वासन दिया है कि वे उनकी समस्याओं और समय की कमी के मुद्दे को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। আমরা সুষ্ঠুভাবে কাজ করার জন্য যে সময়, ন্যূনতম সময় সেটুকু পাচ্ছি না। আমরা 80% ব্লকের কাজ তুলে ফেলেছি। আপনারা সবাই জানেন এই কম সময়ের মধ্যে এই কাজ করা, সুষ্ঠুভাবে করাটা খুবই চাপের কাজ। তবুও আমরা করেছি বিভিন্ন রকম প্রতিবন্ধকতা পেরিয়েও। কালকে হঠাৎ করে দেখছি বিভিন্ন রকম অ্যাপস একটা এসে এই কম সময়ের মধ্যে কাজ কমপ্লিট করতে হবে। আমরা এই চাপ নিতে পারছি না। আপনারা সবাই জানেন ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বিএলওরা বিভিন্নভাবে কেউ সুসাইড করেছেন, কেউ হসপিটালেও ভর্তি আছে। এই চাপটা নিতে পারছে না।
पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के प्रथम चरण का काम पूरा होने और ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने से पहले आज भाजपा ने शीतला स्थित जिला कार्यालय में एक विशेष बैठक आयोजित की। इस बैठक में आसनसोल सांगठनिक जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य ने कहा कि स्थानीय बीएलओ द्वारा फॉर्म जमा करने और डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। भट्टाचार्य ने कहा कि 16 तारीख को ड्राफ्ट रोल निकालने पर अगर फर्जी मतदाताओं के नाम पाए गए तो पार्टी चुनाव आयोग के नियमों के तहत तुरंत शिकायत दर्ज कर उन्हें हटवाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि जिन योग्य मतदाताओं का नाम किसी कारणवश सूची में नहीं पाया गया है उनकी मदद के लिए हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। भाजपा जिला अध्यक्ष ने साफ कहा कि पार्टी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि मतदाता सूची में एक भी फर्जी मतदाता का नाम ना रहे और एक भी योग्य मतदाता सूची से बाहर ना हो। এসআইআর চলছে, ফার্স্ট ফেজের যে কাজ সেই কাজ শেষ হয়ে গেছে। এরপর ড্রাফট রোল বেরোবে। 16 তারিখে ড্রাফট রোল বেরোনোর পরে ক্লেমস অ্যান্ড অবজেকশনের পিরিয়ড থাকবে। তো আমাদের সমস্ত স্তরের কর্মীরা যাতে সক্রিয় থেকে ভুয়ো ভোটার ড্রাফট লিস্টে বেরোলো কি না সেটা চেক করেন এবং সেই অনুসারে আমাদের কাছে রিপোর্ট করেন। তারপরে যা পদক্ষেপ নেওয়া সেগুলো আমরা নেব। এই বিষয়ে আমরা সব কর্মীদেরকে আমরা ডেকেছি, বিভিন্ন স্তরের নেতাদেরকে ডেকেছি, সবাইকে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে 16 তারিখ যে ড্রাফট রোল বেরোবে সেই ড্রাফট রোল ভালো করে চেক করা, ভুয়ো ভোটারের নাম সেখানে যদি থেকে থাকে সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করা এবং ইলেকশন কমিশনের যে পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে সেই পদ্ধতিতে অবজেকশন করা এবং অনেকের নাম বাদ পড়ে গেছে কিন্তু হয়তো উনি যোগ্য আছেন এরকমও থাকতে পারে, তাদেরকে হেল্প ডেস্ক তৈরি করে তাদেরকে সহায়তা করা, হিয়ারিংয়ে যখন লোকে যাবে ডাকবে তাদেরকে সহায়তা করা। अगर आप बना रहे हैं सपनों का घर या घर को देना चाहते हैं नया रूप तो चले आइए लिलेन गैलरी। आसनसोल के सृष्टि नगर के सेंट्रल मॉल में लिलेन गैलरी में मिलेंगे आपको रंग बिरंगे नए फ्लेवर वाले बेडशीट, खूबसूरत बाथरूम सेट, शानदार कारपेट, मैट्स और पर्दा, प्रीमियम ब्रांडेड कंपनियों के किचन अप्लायंसेस, खूबसूरत स्टील व ग्लास थर्मोवेयर भी मिलेंगे। लिलेन गैलरी, शॉप नंबर 214, फर्स्ट फ्लोर, सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। पार्वती टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आज शिक्षा को अधिक व्यापक बनाने, आधुनिक शिक्षण पद्धति में आवश्यक बदलाव और राष्ट्रीय नीति
NEP 2020 में शिक्षकों की भूमिका पर केंद्रित एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। Thank you for this session. सेमिनार में पार्वती इंस्टीट्यूट के संस्थापक सचिन राय और मीता राय, आसनसोल BC कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर फाल्गुनी मुखर्जी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के डॉक्टर KC साहू, जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रास्ते के मास्टर के नाम से विख्यात दीप नारायण नायक तथा आसनसोल रानीगंज के कई कॉलेजों के प्रधानाध्यापक और विद्यार्थी उपस्थित थे। इस अवसर पर पार्वती टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आधुनिक शिक्षा पद्धति पर केंद्रित शोध कार्य वाली एक पुस्तक का विमोचन किया गया। संस्थापक सचिन राय ने बताया कि सेमिनार का मुख्य उद्देश्य शिक्षाविदों द्वारा आधुनिक युग में शिक्षा प्रदान करने के तरीकों में किन बदलाव को आवश्यकता है, शिक्षा को समाज के हर तबके के विकास में कैसे कारगर बनाया जा सकता है, नई शिक्षा नीति 2020 के लाभ और शिक्षकों के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार विमर्श। श्री राय ने कहा कि संस्थान का लक्ष्य अपने प्रशिक्षु शिक्षकों में ऐसा जज्बा पैदा करना है ताकि वे भविष्य में समाज में आदर्श शिक्षक के रूप में स्थापित हो चुके। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त शिक्षाविदों के अनुभव से संस्थान के विद्यार्थी प्रेरित होंगे। এই যে টিচাররা যারা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ আমাদের সোসাইটি, আমাদের রাজ্যের, আমাদের দেশের যারা ভবিষ্যৎ, তারা কিভাবে এই শিক্ষাটাকে নিয়ে যাবে, যে মডার্ন যে টেকনোলজি বা মডার্ন যে এডুকেশন সিস্টেম সেটাকে কী নিয়ে যাবে সেই ধরনের সেমিনার। এখানে বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটির মিস্টার KC সাহু এসছেন এবং বিভিন্ন কলেজের প্রিন্সিপালরা টিচাররা এখানে এসছেন, তাদের ভিউ দেবেন, তাদের মতামত যাবেন শুনবেন। এখানে আমাদের স্টুডেন্টরা আছে, আমাদের পার্বতী টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের যে BED কলেজের সমস্ত ছাত্রছাত্রী তারা আছে, সমস্ত সবাই আমরা আজকে এই সেমিনারে তাদের বক্তব্য শুনব যে আগামী দিনে আমাদের এই টিচার্স যে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কীভাবে চলবে, আমাদের ন্যাশনাল যে পলিসি এডুকেশন পলিসি NEP 2020 তাদের কী বলছে, তাদেরকে অনেকে এগুলো জানা নেই, অনেকে জানে না, তাদের জানাতে হবে এবং যারা প্রফেসররা এসছেন তাদের বক্তব্য বলবেন। আমাদের উদ্দেশ্য একটাই যে শিক্ষাটাকে আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিয়ে যাওয়া, এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তামিলনাড়ু, কেরালা, সেখানে তো বিজেপি সরকার নেই, সেখানে তো SIR হচ্ছে, কোনো টু শব্দটি নেই। आसनसोल दक्षिण की विधायक और भाजपा नेत्री अग्निमित्रा पाल ने आज अपने आवासीय कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और TMC पर तीखे हमले किए। विधायक ने कहा कि पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रक्रिया चल रही है, लेकिन केवल पश्चिम बंगाल में इसका विरोध हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को डर है कि फर्जी मतदाताओं के नाम कटने से 2026 में उनकी जीत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वह 2011 से अब तक इन्हीं फर्जी वोटों के दम पर जीतती आई है। মানে তো ডিস্ট্রাকটিভ পলিটিক্স, তৃণমূল মানে ডিভিসিভ পলিটিক্স, বিভাজনের রাজনীতি। 12টা রাজ্যে তো SIR হচ্ছে, তামিলনাড়ু, কেরালা, সেখানে তো বিজেপি সরকার নেই, সেখানে তো SIR হচ্ছে, কোনো টু শব্দটি নেই। বিহারে SIR হলো, কিন্তু এখানে দেখুন, এখানে মুখ্যমন্ত্রী মহিলাদের নিয়ে, মহিলারা নাকি সামনে থাকবে, 1000 টাকার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিয়ে মহিলাদেরকে ভুল কাজে ব্যবহার করা। মহিলাদের সশক্তিকরণ এখানে হয় না। দুর্গাপুজো, কালী পুজো, কালী ঠাকুরের গলা কেটে দেওয়া হয়, কিন্তু সেখানে মহিলাদেরকে বিভ্রান্ত করে ভুল কাজের জন্য তাদেরকে ব্যবহার করা। CAA-তে ব্যবহার করেছেন ভুলভাবে, ওয়াকাফ সম্পত্তিতে ব্যবহার করেছেন ওয়াকাফের বিলে, এবারও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আপনি এটা ছাড়া আর কী করতে পারেন? বাংলাকে তো শেষ করে দিয়েছেন এবং আরও চেষ্টা করছেন যাতে 2026-এ এইভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করে আপনি পাওয়ারে থাকতে পারেন। এটা আর হবে না। বাংলার মানুষ ডিসাইড করে দিয়েছে পরিবর্তন চাই। যদি কোনো কমপ্লেন থাকে যে কোনো নাম মানে কেটে দেওয়া হয়েছে অবৈধভাবে, তাহলে আপনি আদালতে যেতে পারেন। আদালত, সুপ্রিম কোর্ট তো আপনি বারবার এটা কাক মরলেও আপনি আদালতে চলে যান, সুপ্রিম কোর্টে যান, এখানেও আপনি যেতেই পারেন। বিহারও তো বলেছিলেন 65 লাখ নাম বাদ হওয়ার পর যে অন্যায় হয়েছে, একটাও তো প্রমাণ দেখাতে পারলেন না। আদালত তো বারবার বলেছিল। আমরা বুঝতে পারছি মুখ্যমন্ত্রী, আপনি এই কটা ইলেকশন 2011 থেকে কিভাবে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী, মৃত ভোটার, কিভাবে ডুপ্লিকেট ভোটার, শিফটেড ভোটারকে দ্বারা আপনি ইলেকশন করিয়েছেন, জিতেছেন। মমতা ব্যানার্জি, আপনি 2005 সালে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে এই অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে আপনি কাগজ ছুঁড়ে মেরেছিলেন ডেপুটি স্পিকারকে।
কি হয়ে গেল মমতা ব্যানার্জি যে 180 ডিগ্রি আপনি চেঞ্জ হয়ে গেলেন? এখন অনুপ্রবেশকারী, রোহিঙ্গা, মৃত ভোটার তাদের নাম কাটা গেলে আপনার খুব অসুবিধা হচ্ছে। বাংলার মানুষ বুঝতে পারছে, সবাই বুঝতে পারছে যে কেন আপনি এসআইআরকে যেন তেন প্রকারে আপনি থামাবার চেষ্টা করছেন। লাভলি খাতুনের মতো বাংলাদেশের মানুষ, তাকে আপনারা পঞ্চায়েত প্রধান বানিয়ে দিয়েছেন, কাগজপত্র দিয়ে দিয়েছেন। এগুলো ভারতবর্ষের মানুষ বুঝেছে। বাংলার 10 কোটি মানুষের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করছেন, আর ভারতবর্ষের 140 কোটি মানুষের সাথে ছেলেখেলা করছেন সিকিউরিটি নিয়ে। এগুলো আমরা করতে দেব না। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है एलजी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम एलजी शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। চলো দেখি এখানে কি কি বিশেষ আছে। ডাইনিং টেবিলও অসাধারণ, ক্লাসিক থেকে শুরু করে একদম মডার্ন পর্যন্ত। ড্রেসিং টেবিলের সম্ভার, ওয়াও এত ডিভান্স। সোফা সেটের অ্যাট্রাকটিভ কালেকশনস। কোনটা নেব, সবই একে অপরের চেয়ে দারুণ। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। न्यामतपुर मोड़ टैक्सी स्टैंड पर शुक्रवार दिन दहाड़े एक स्कूल छात्र की कुछ युवकों द्वारा बेरहमी से पिटाई किए जाने की घटना सामने आई है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक निजी स्कूल के छात्र को लगभग 5 से 6 युवकों ने मिलकर सरेआम पीटना शुरू कर दिया। यह घटना न्यामतपुर बाजार के टैक्सी स्टैंड जैसे व्यस्त इलाके में हुई। लोगों ने जाकर बचाया। युवक को पीटते देख स्थानीय टैक्सी चालक और दुकानदारों ने तुरंत हस्तक्षेप किया। लोगों को अपनी तरफ आते देख हमलावर युवक भागने लगे, लेकिन स्थानीय निवासियों ने पीछा करके उनमें से एक युवक को पकड़ लिया। बाकी 5-6 युवक मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने पकड़े गए युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना मिलने पर कुल्टी थाना के न्यामतपुर फाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल स्कूल छात्र को सुरक्षित निकाला और पकड़े गए आरोपी युवक को हिरासत में लेकर फाड़ी ले गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। घटना एक्चुअली हम दुकान का सामने पे थे, देखा कि 2-4 लड़का मिलकर 3-4 लड़का था, उन्हें मिलकर एक लड़का को स्टूडेंट को मारने लगा। वो ग्रीन पॉइंट का स्टूडेंट था, उसको मारने लगा। तो फिर जितना यहाँ का ड्राइवर लोग है, जितना भी कार स्टैंड का ड्राइवर लोग सबको गया। उसके बाद हम लोग भी गए तो जाके देखे कि एक लड़का को अचानक से मार रहा है। तो हम लोग पूछे पकड़ के कि क्या आखिर मारने का कारण क्या है और ऐसा कहे मारेगा, इतना ऐसा मारना, ऐसा मारना, मुँह ढक के मारना। एक जन मुँह ढका हुआ था, वो तो मारा नहीं, जो मारा वो बोल रहा है कि मेरा बहन को छेड़ा चली गई, बहन का केस है। आई लड़का तो जब पूछताछ किया, हम लोग पूछे क्या बात है, बोला कि मेरा फ्रेंड है लड़की तो, और वो किसी से प्यार करता है, मैटर यही है।
मैटर बाकी पुलिस समझे और प्रशासन समझे। काहे के लिए किया झगड़ा तुमसे? काहे के लिए किया झगड़ा? किसी लड़की को कोई पसंद करता था, वो मेरी दोस्त है बोल के मार दिया, सिंपल बात। झूठ मूठ का इल्जाम लगा कि मैं छेड़ा, मैं छेड़ने वाला दिखता हूँ क्या? रानीगंज में विधायक इलाका उन्नयन प्रकल्प के तहत रानीगंज के पूर्व विधायक सोराब अली द्वारा बनवाए गए तार बंगला और शिशु बागान के बस स्टैंड रखरखाव के अभाव में बदहाली का शिकार हो चुके हैं। स्थानीय निवासी विजय कुमार ने बताया कि दोनों बस स्टैंड की हालत इतनी दयनीय है कि यात्री यहां रुकना पसंद नहीं करते, जिसके कारण बसें भी अब थोड़ा आगे रुकती है। बस स्टैंड की फॉल्स सीलिंग टूट चुकी है, लाइटें खराब है और बैठने के लिए लगाई गई कुर्सियां या तो टूटी हुई है या चोरी हो चुकी है। बस स्टैंड का सफाई ना होने के कारण गंदगी का अंबार लगा रहता है। सबसे गंभीर समस्या यह है कि रात में ये बस स्टैंड शराबियों और नशा करने वालों का अड्डा बन जाते हैं, जिससे क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। स्थानीय लोगों ने वर्तमान विधायक तापस बनर्जी और प्रशासन से अनुरोध किया है कि वे तुरंत इस बस स्टैंड की मरम्मत और रखरखाव पर ध्यान दें, ताकि ये यात्रियों के लिए सहूलियत की जगह बन सके, न कि शहर की छवि खराब करने का कारण। देखिए ऊपर देखिए, इधर देखिए, इधर कुर्सी भी टूटा हुआ है, कलर उलर भी होना चाहिए और लाइट भी रहेगा। ठीक है, लाइट का कंडीशन एकदम नहीं है रात को, बस यही है प्रॉब्लम है यहाँ। बस स्टॉप का ऊपर का जो सीलिंग है क्या कंडीशन में है? और टूटा हुआ है, देखिए फॉल सीलिंग जो है ना, फॉल सीलिंग टूटा हुआ है, उसको अगर रिपेयरिंग करे अच्छा लगे। तो बैठने में आप लोग यहाँ पर डर लगता है कि? हाँ, डर लगता है कहीं गिर जाए नीचे। चेयर का कंडीशन जहाँ बैठे हुए? हाँ, जो बोले टूटा हुआ है सब। साफ सफाई नजर आ रहा है? नहीं, साफ सफाई कुछ नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं यहाँ अच्छा से क्लीन हो जाए, सब पूरा बन जाए। हाँ, फॉल सीलिंग लाइटिंग उटिंग लगे, थोड़ा सेफ जोन रहे सब जगह में। বাসের এখানে বাস স্টপটা স্থিতি বহুত খারাপ আছে। এখানে বাস স্টপ আছে কিন্তু এখানে বাস দাঁড়ায় না, বাস দাঁড়ায় একটু পেছনে। আর বাসের যে বাস স্টপটা আছে, এই যে আমাদের এখানে সামনে একটা পাবলিকের জন্য যে সুবিধার জন্য যে করা হয়েছে এটা স্টপটা, সেই স্টপের কন্ডিশন ফুললি ড্যামেজ আছে একদম। এটাকে রিকন্ডিশন এটা করা উচিত। তারপরে এখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কিচ্ছুই হয় না, নোংরা ভাবে রাখা আছে। এটা নিট এন্ড ক্লিন দরকার। স্টপের সিলিং কি? চেয়ারগুলো পুরো কন্ডিশন পুরোপুরি ড্যামেজ আছে, ওগুলো আবার ওটা রিপেয়ারিং এর দরকার আছে। যদি আমাদের মাননীয় যে বিধায়ক আছেন বা অন্য কেউ যে আমাদের মেন যে হেড আছেন, তাদের একটু কন্ডিশনটা আমাদের রানীগঞ্জের মধ্যে যদি এগুলো বাস স্টপগুলোকে দেখবে তো খুবই ভালো হবে। कंडीशन बहुत खराब कंडीशन है। जब यहाँ बैठते हैं तो क्या महसूस होता है? कभी गिर सकता है मेरे माथा ऊपर। साफ सफाई और साफ सफाई सब चेयर का कंडीशन? कभी भी चेयर कंडीशन बहुत खराब है, मेंटेनेंस नहीं, इसी वजह से प्रॉब्लम है। क्या चाहते हैं आप लोग? ये चाहते बढ़िया बना ताकि 2 दिन बैठे अच्छे से बैठे, और क्या चाहिए। সেম ওইরকম কন্ডিশন যখন তৈরি করেছিল তখন ভালো ছিল, আস্তে আস্তে কন্ডিশন করে সব খারাপ হয়ে গেল। এখন আপনি এখানে রয়েছে দেখছেন তো আপনি? হ্যাঁ, ও তো সবাই দেখছে, কি বলবো কি বলবো। পরিষ্কার বা মেনটেন আপনি? কিছু না, সুপারওয়ালা আছে, ঝাড়ু ফাড়ু কিছু দেয় না, খালি ওদের রোডটা করে চলে যায়। উপরে দেখো, আর উপরে কত জিনিস আছে রাখা, ওইখানে দেখো ওটা তো পুরনো ছিল, অনেক পুরনো, তারপরে এটা তৈরি হয়েছে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। BN घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। श्री जानकी स्टोर, লিনেন গ্যালারি, BN ঘাটি, মেন্স শপিং।